Once again, good morning to all of you and welcome to the English world of Aradhya. Student, those who are not here present last time, let me introduce myself. I am Rashmin Dabi, teaching the students of 9 to 12 standard of English medium in Aradhya classes. So last time we had taken the chapter A Letter to God and we had reached almost towards the end of that. Now we are beginning from the 6th page. Remember last time we had seen Lencho's crop was devastated by the hailstone and he was worried. He knew that now if he doesn't get any help, he and his family would have to go hungry the whole year. But all his family members had faith in God, and his wife also reminds him, don't lose faith. And then finally Lencho thinks out a plan of writing a letter to God for help. And what he demands in that? He demands 100 pesos. For what? For two particular reasons. He wants to sow his fields again with the seeds. So to purchase seeds, he will require money. And once the field is sowed with seeds, then it will take time to come up. So it will take about 3 months, 4 months. Till that time, what will Lencho and his family eat? So to survive during that time also, he requires some money. So altogether, with these two reasons, he demands 100 pesos from God. And he writes a letter, goes to the town, puts a stamp on it and just puts it in the mailbox. When the letter comes to the postman's hand, postman is very much amused to see the address to God. And he takes the letter to the postmaster. Now postmaster also, when he first saw the letter, he laughed. But I told you, he was a very sensible person. He was very amiable person. So he thinks of answering this letter. So we will see from there. See page 6, okay, from the top. But also broke out laughing, but almost immediately he turned serious. He here means the postmaster. And tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." He was very much impressed with the faith of Lencho. कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भी ये लेंचो जैसा फेथ हो, कि मैं गॉड से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर पाऊँ, जो भी चाहूँ वो मिल जाए. अंडरस्टूड? स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. सो दैट वाज हिज व्यू, his aim, कि as Lencho is directly corresponding with God, why can't I? If you want to correspond with God in this way, you need what? Solid faith. No doubt at all, students. That's why it is said कि when you go to a temple, keep your mind out and only heart in. Heart forces you to believe in the existence of God. Heart forces you to believe in the help of God. Heart forces you to believe in all the things, good or bad, done by God. But when you go to a science lab, keep your heart out and take your mind in. वहाँ हार्ट से काम नहीं कर सकते, वहाँ माइंड से काम करना है. तो two different places where you are supposed to take two different things. One you have to keep out. साइंस लैब में जाओ, वहाँ केमिस्ट्री लैब में स्पेशली, तो वहाँ क्या है? केमिकल के साथ काम करना है. अब अगर वहाँ किसी ने अपना दिमाग नहीं दौड़ाया, ध्यान नहीं रखा, तो ही माइट मीट विथ एन सम एक्सीडेंट. अंडरस्टूड? एनीथिंग, एनी एसिड माइट फॉल ऑन हिज बॉडी, ऑन हिज एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ही माइट गेट इंजर्ड. So there you will have to take your mind and heart out. But when you go to a temple, take your heart only in, keep your mind out. No doubting in the existence of God. ऐसा होना चाहिए. So here postmaster is very much impressed with the faith of Lencho in God. So he also desires that he should also have like this faith in God. So in order not to shake the writer's faith in God, here writer is Lencho. ये लेटर लिखने वाला कौन है? लेंचो. उसका फेथ उसको शेक नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है. उसका फेथ जैसा है वैसा ही बना रहे, वो चाहता है. बना कब रहेगा? जब लेंचो ने जो चीज़ मांगी है वो गॉड उसको देता है तो बना रहेगा. अगर वो चीज़ नहीं मिली
तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका फेथ हिल जाएगा कि मैंने गॉड से मांगा था, गॉड ने कुछ नहीं दिया, तो हाउ कैन आई बिलीव दैट गॉड इज देयर? So to maintain his faith in God, the postmaster will have to do something. What he can do? He can send the money to Lencho. So his faith will sustain for a long, long time. Okay. The postmaster came up with an idea. Answer the letter. पोस्टमास्टर चाहता था कि उसका फेथ को मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, तो उसने एक आइडिया सोचा, क्या इसके लेटर को हम आंसर करें, बराबर जवाब दे। इसका जवाब देने के लिए क्या करना पड़ेगा? जवाब देने के लिए उसको पैसे इकट्ठा करके देने पड़ेंगे या तो खुद की जेब से देने पड़ेंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट यानी क्लियर दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। इसको आंसर देने के लिए क्या है, मुझे सिर्फ लेटर लिखना जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ मैं लेटर का जवाब दे दूँ तो उसका फेथ रहेगा नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट साथ में मैं पैसे भेजूंगा जो उसने डिमांड किए है गॉड से, तो उसका फेथ जरूर रहेगा। ओके, तो गुडविल, इंक एंड पेपर, सो दैट इज ओनली दोज आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू आंसर द लेटर, बट वन मोर थिंग इज रिक्वायर्ड। व्हाट इज दैट? मनी। बट ही स्ट्रक टू हिज रिजोल्यूशन यानी फॉर्म डिसीजन। उसको ये पता चला कि अगर मुझे आंसर देना है तो सिर्फ इंक, पेपर या अच्छी भावनाएं काम नहीं आएगी, उसके साथ पैसे भी बेचने पड़ेंगे, तब उसका फेथ बना रहेगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। ओके, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। अंडरस्टूड? सो हियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस थ्री थिंग्स कि ही गेव some part of his salary, he collected from his employees also, other postmen and clerks who were working in the post office, and he also contacted many of his friends, several friends yani many of his friends who were obliged, who were forced to give something for an act of charity, कि भाई चैरिटी का काम करना है, थोड़े दो, थोड़ा कुछ दो, थोड़ा कुछ दो, ऐसा करके उसने अपने बहुत फ्रेंड से भी कलेक्ट किया। So here he did not contact his relatives. Remember, ये एक तुम्हारे MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि which of the following was not contacted by the postmaster to collect the money। तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा रिलेटिव्स। तो रिलेटिव्स का तो यहाँ कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं किया, रिलेटिव्स थे ही नहीं, उसने खुद का दिया, ऑफिस एम्प्लॉयज़ का लिया और थोड़ा पैसा उसने अपने फ्रेंड से कलेक्ट किया। ओके, it was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half। वो मैंने बताया था, more than half। टोटल अमाउंट क्या था? 100 पैसो, उसका हाफ कितना होता है? 50 पैसो। यहाँ वो कितना कलेक्ट कर पाया? लिटल मोर देन हाफ, यानी हाफ 50 होता है तो 50 से थोड़ा ज़्यादा ही कलेक्ट कर पाया। ही कुड नॉट कलेक्ट द एंटायर अमाउंट। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God। पैसे उसने अंदर रखे एनवेलप में, उसके साथ एक लेटर रखा, लेटर में और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ गॉड लिखा। कहाँ पे? सिग्नेचर की जगह पे, ताकि लेंचो कैन बी श्योर दैट इट इज द मनी सेंट बाय गॉड। ओके, the following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। पोस्टमैन वहाँ डिलीवरी करने जाए, उससे अच्छा लेंचो खुद ही आया इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि उसको ज़रूरत है कि कोई लेटर है उसके लिए। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। ओके, तो पोस्टमैन ने उसको लेटर दिया एंड पोस्टमास्टर इज लुकिंग दिस सीन वेरी मच सेटिस्फाइड। कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन, विद सेटिस्फैक्शन ही इज वॉचिंग ओके लेंचो टेकिंग दैट लेटर एंड नाउ ही वांट्स टू नो द रिएक्शन ऑफ लेंचो। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो ने खोला तो अंदर पैसे थे, सो पैसे होंगे तो
ऐसे गॉड को लिखा और कोई कुछ ऐसे भेज दे तुम्हारे में पास, सही में वो चीज़ आए, तो इफ़ यू आर अ मैन ऑफ लिटल फेथ यू विल शो सरप्राइज। बट लेंचो इज अ मैन ऑफ ग्रेट फेथ, ग्रेट सॉलिड फेथ, इसलिए उसने कोई सरप्राइज नहीं दिखाई। मैंने गॉड से मांगे तो गॉड देगा ही। अंडरस्टूड? सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। शुरुआत में मैंने बताया था उसका मूड चेंज हो गया। पहले उसने कोई सरप्राइज नहीं बताया, उसको पता है कि गॉड भेजेगा ही, मैंने उसको बोला है तो वो भेजेगा, बराबर। तो ऐसा स्टूडेंट्स हमारे धर्मों में भी कहा गया है कि व्हेन यू डिमांड समथिंग फ्रॉम गॉड, जस्ट कीप इन माइंड दैट वॉट एवर यू आर डिमांडिंग गॉड इज गिविंग यू। इफ यू डोंट हैव दिस फेथ you will not get anything. If you have this faith, within a short time you will get what you have demanded. जब मांगो तो उतना फेथ होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो यहाँ उतना फेथ है लेंचो में। God could not have made a mistake, so his mood was changed when he counted the money, which was not the total amount. Totally, altogether he demanded 100 pesos and now he is getting 70 only. So that's why his mood changed. Okay, so God could not have made a mistake. God कभी गलती नहीं कर सकता. Nor could he have denied Lencho what he had requested. और जो लेंचो ने रिक्वेस्ट की है उसका भी वो इनकार नहीं कर सकता। फुली अमाउंट देगा ना, अगर देना है तो आधा क्यों दे देगा? गॉड को कोई चीज की कमी है? गॉड के पास कोई भी चीज की स्कैरसिटी नहीं है, अछत नहीं है, उसके पास सब कुछ है, तो वो क्यों आधा देगा? अंडरस्टूड? इसने यहाँ कई लाखों रुपए थोड़ी मांग लिए हैं, 100 पैसे ही मांगे हैं। ओके, तो दैट मच गॉड कैन गिव। ओके, तो ये उसको पक्का पता था कि गॉड रिक्वेस्ट भी मेरी जो भी मांगा है उसको वो इनकार नहीं करेगा। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। नाउ ऑल दिस रिएक्शन ऑफ लेंचो इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द पोस्टमास्टर। वो देख रहा है अपनी वो ग्लास विंडो से ये कर क्या रहा है, तो उसने जाके पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. Okay, in his brows some worries could be seen through the wrinklings. जब वो लिख रहा था तो ये आईब्रो के ऊपर थोड़ी लाइन्स होती थी। वो लाइन्स क्या दिखाती है कि वो थोड़ा चिंतित है, वो चिंता में कुछ लिख रहा है। टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। नाउ व्हाट इज देयर इन हिज आइडियाज दैट वी विल सी नाउ। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही licked यानी applied saliva on it and then affixed to the envelope. स्टैम्प खरीदी, स्टैम्प को गीला किया और फिर उसने एनवेलप पे चिपका दिया। विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी ये पंच। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही उसने मेल बॉक्स में डाला वैसे ही पोस्टमास्टर बाद में गया। इट सेड, नाउ ही वॉज ईगर टू नो कि इसने सामने कुछ लिख के भेजा है। वॉट कुड द पोस्टमास्टर हैव एक्सपेक्टेड कि इसने थैंक यू लिखा होगा अंदर, ये गॉड मैंने मांगा था, आपने पैसे भेजे, शुक्रिया। बट हियर समथिंग एल्स हैपन्स। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। मैंने मांगे थे 100, उसमें से सिर्फ 70 मेरे तक पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के मुझे भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, बराबर। तो ही हैज़ डन एक्यूरेट कैलकुलेशन स्टूडेंट्स, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। बाकी के जो 30 पैसे बाकी है वो मुझे भेजो, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंचो ये चीज़ें उसने लेटर में लिखी थी कि भेजो बाकी के पैसे, पर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के जरिए मत भेजना। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले सब क्या है, सब क्रुक्स है, सब चीट्स है। तो रिमेनिंग 30 pesos they only must have taken. So here the story ends. Lencho is unknowingly blaming
the guys who have already helped him. Understood? So students, that's where we end this lesson. Lencho's demand is what? Very calculative demand. He does not demand anything more. He demands accurate amount which he requires just for a few months. दूसरा कोई होता तो क्या मांग लेता? कुछ ना कुछ कहीं का कहीं मांग लेता. Okay, we have ended the lesson, but just one story I remember, so I would like to share it with you. कि when God tells you demand what you demand, whatever you want, then you take time from God. कि God, I will let you know tomorrow. Okay? Okay. So you take time from God. Why I am telling you? See, there was one Brahman. He was Brahmin. He was very poor and he was blind also. So, but he was a staunch believer of God. Every day he would worship God. So, one day God and goddesses were watching him. The goddesses asked God, why don't you grant his wish? Why don't you give him something? The God said, no, I cannot ask him for demanding anything. Goddess बोले ऐसा क्यों? तो बोले you want to see? Let's see. One day God appeared to that person, that poor blind Brahmin, and asked him, demand whatever you want to demand. You know what that Brahmin demanded? He said, God, from the 12th floor of one of my palaces all over the world, I should be able to see my grandson's grandson swinging in the golden cradle. ये चीज उसने मांगी. Instantly God looked at the goddesses. मैं पहले नहीं बोलता था इसको वरदान देने के लिए डिमांड कर, ऐसा भी नहीं बोल सकते. इसने कितना सारा मांग लिया. वो ब्राह्मण गरीब था, अंधा था, बराबर. उसने क्या क्या मांग लिया कि फ्रॉम वन ऑफ द पैलेसेस, फ्रॉम द 12th फ्लोर ऑफ वन ऑफ द पैलेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में मेरे इतने सारे महल हो, और सभी महल 12 फ्लोर के तो होंगे ही, क्योंकि उसने कहा 12वें फ्लोर में से मेरे जितने महल है उसमें से कोई भी महल के 12वें फ्लोर में से मैं आई शुड बी एबल टू सी माई ग्रैंडसन्स ग्रैंडसन, मैं अपने पोते के पोते को, यानी कितनी 5 पीढ़ी हो गई, पोते के पोते को शुड बी एबल टू सी माई ग्रैंडसन्स ग्रैंडसन स्विंगिंग इन द गोल्डन क्रेडल. तो इतनी लंबी उसने आयु मांग ली, 5 पीढ़ी तक, और वो मेरे पोते के पोते को मैं गोल्डन क्रेडल यानी सोने के झूले में झूलता हुआ देखूं. तो संपत्ति भी मांग ली. एंड देखूं यानी he was already blind, so he demanded the eyesight also. तो एक ही डिमांड में उसने इतनी सारी चीजें मांग ली. तभी गॉड ने गॉडेस के सामने देखा. मैंने पहले कहा था ना, इसको बोल भी नहीं सकते तू मांग. Our Lencho is not like that person. He needs only 100 pesos. He demands only 100 pesos. Understood? So he is a very simple person. With that we complete the lesson. Students, its answers are quite easy. I hope you have understood the lesson thoroughly. Okay. Next time when we meet, we will talk about the second lesson, or we'll take up a poem. Now to learn poem you require what? Figures of speech, which I already taught you last year. So we'll first refresh the figures of speech, and then we'll take up the poem. Till then, bye.